Good afternoon children, myself Vaibhav Kulkarni, TGT Maths from Jawahar Navodaya Vidyalaya Osmanabad. I welcome you all in my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. You might have seen and enjoyed and learned my videos of class 9th standard and 10th standard. Even we have also taken up a basic foundation course for the students from 6th to 10th standard, that is basic maths for all. So I think the videos you might have enjoyed it and you are using it also for self learning purpose. So kindly use the video, share with all, comment in the comment box and subscribe it so that you will always get my updated videos. Thank you. Good afternoon बच्चों. बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 19 के अंतर्गत फैक्टराइजिंग सिंपल एक्सप्रेशंस, ये आज का हमारा टॉपिक है. ये टॉपिक देखने के बाद काफ़ी लोगों को लगेगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है. मैं मानता हूँ ये सिंपल है, मगर इसको मत भूलिए कि हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं. सो एक्चुअली इट इज़ in this topic children make lot of mistakes, and what type of mistakes they make and where to correct, how to correct, that is what I am going to discuss in today's video. See here, and we will discuss actually all the problems by different methods. कैसे अलग अलग मेथड से इसको सिंपल वे में कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है, इसको पढ़ते समय आप कैसे पढ़ो, 8 इंटू एक्स प्लस 24, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, लेट अस सी. देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 इंटू एक्स. 24 को आप लिख सकते हो 2 2 जार 4, 4 3 जार 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 and 8 3 जार 24. तो हाउ यू कैन राइट, 8 can be written as 2 into 2 times of 2 into x. 24 can be written as 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 is common here, this 2 is also common and this 2 is also common. So what remains in the bracket is 2 into 2 we can take it outside the bracket. What remains here is 1x will remain and 1 3 will remain. So the answer is 8 into bracket x plus 3. What is it? 8 into bracket x plus 3. Suppose when you are in the junior class like say 6th standard or 7th standard, it's okay to do this problem by this method. But when you come to class 10th standard, you are not expected to do the same problem by this method. इस तरह से आपसे अपेक्षित नहीं है. तो मैं दो मेथड से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या होता है और आपको करना क्या चाहिए जब आप बड़े क्लास में जाते हो. छोटे क्लास में ये अपेक्षित है और बड़े क्लास में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 8 और 24 का HCF होता है 8. क्यों? क्योंकि 8 और 24 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ी संख्या है 8. तो 8 को अगर आपने कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 8 3 ज़ा 24. तो एक्चुअली जवाब आना चाहिए एक स्टेप के अंदर, मगर बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता ये कैसे आया. तो ये जो अगर आपने बेसिक कहीं मिस किया है, जिन बच्चों का बेसिक मिस किया है उनके लिए ये है, और जिनको समझ में आया तो डायरेक्टली लास्ट क्लास में हम डायरेक्ट मेथड से भी हम करेंगे जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं. तो पहले तो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके आपके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को इस तरह से न किए बगैर हाउ वी कैन डू इट डायरेक्टली, दैट आल्सो आई टेल यू. What about the second problem? In the second problem you see here 12s square t is there. So 12 can be written as 2 2s are 4, 4 3s are 12 into s into t plus 28 can be written as 2 2s are 4, 4 7s are 28 multiplied by s. Now let us see what is common here. 2 is common here, 2 is common here, so I have taken 2. Again 2 is common here, 2 is common here, so I have taken 2 here. Then again 3 is here, 3 is not present here. S is present here, but S is also present here.
T is present here, but T is not present here. 7 is present here, but 7 is not present here. So whatever remains here, we have to keep it. See, 3 is not there, so 3 will remain inside the bracket, and this out of 2s, 1s is common, so 1s will remain here. Then again T will remain, and plus how much? 7. So what you will get is 2 2s are 4 into s into bracket 3st plus 7. And if you want to cross verify, you can cross verify also. Plus of plus is plus, children. 4 3s are 12. S into s is s square into t, plus 4 into 7 is 28 into s is 28s. So you got the answer. Here also you can cross verify. 8 into x is 8x, 8 into 3 is 24. Now this is what you usually do in your lower classes, 6th standard or 7th standard, maybe in 8th standard also. But when you come to higher class, you need not have to do by that method. You should know that the HCF of 4 and 28 is 12 and 28 is 4, because 4 3s are 12, 4 7s are 28. 4 is the highest number that divides 12 and 28. So you can take here 4 common. Then what else is there? S square is there and s is there. S square is there and s is there. So I can write it as out of 2s, 1s is common, and then what remains in the bracket is 4 3s are 12, 4 3s are 12, then again 1s, and then 7. And here one t is there, so that t also should be included here. So what we get here is 4s into bracket 3s t plus 7. Now let us take up one more problem. 72wz plus 45w square z. First two problems, the numbers were very small. So I think this method is very simple for me to explain. Now as you keep on moving towards the right, you can see that the numbers are of greater values. At that time, practically doing by this method will not be feasible. So children, now you should do our smart method. What is that smart method? I have already told you. See here 72 is there, here 45 is there. So now what you should do is, you have to find a number that divides 72 and that divides 42. See, very simple children, 9 8s are 72. So what I will do is, I will take here 9 common factor, 9 8s are 72. Out of 1w and w square, I will take 1w here common factor. So a w is taken common, 1 z is there, 1 z is there, so that z can be taken common. So what remains here is 9 8s are 72, wz already I have taken common, 9 5s are 45. Out of 2 w's, 1 w already I have taken common, so what remains in the bracket is only 1 w. This z is already taken common. Suppose if you have the doubt in your mind, if you want to verify the answer, it's very simple children. Plus of plus is plus, 9 into 8 is 72, w into z is wz. Plus of plus is plus, 9 into 5 is 45, into w is w square into z. That's all, the matter ends here. Every time you need not have to write a long list of factors to get the answer. Okay, for the last time, since the numbers are small, I will take it up by writing the factors. See, for example, 9 and 15 is there. It is very simple for me to write the factors. For example, in case of 9, I can write it as 3 multiplied by 3. In case of h square, h multiplied by h. In case of g as it is. 15 can be written as 3 multiplied by 5 multiplied by h multiplied by h.
So what is common you have to see? 3 is once repeated, 3 is not repeated for the second time, h is repeated once also, second time also it is repeated. Okay, fine, fantastic. G is there only for the one time, G is not here. So whatever is repeated you have to take common. So in that case what I will have to take here? 3 I will take common. Fine, h into h is common, so I will take into h into h. So now whatever remains you have to write in the bracket. So 3 is common here, then g remains here. I have taken 3 outside, I have taken h outside, I have taken h outside. What remains is 3g minus 3 is already taken outside, h into h हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 5h बचेगा. तो फाइनली व्हाट आई विल गेट इज 3h स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3g माइनस 5h. सर हमको डाउट है सर, हमारा उत्तर सही है गलत है? सिंपल है बेटा, अगर तुमको डाउट है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा. 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 होगा. h स्क्वायर इंटू जी होगा h स्क्वायर जी, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा. 3 इंटू 5 15 होगा, h स्क्वायर इंटू h क्यूब होगा. तो मेरा जवाब सही है या गलत है ये देखने के लिए मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है किसी गाइड में, मैं खुद उसको वेरीफाई कर सकता हूँ. तो अब देखिए प्रॉब्लम कितना छोटा सा है, सच ए स्मॉल प्रॉब्लम बट 1 2 3 steps are involved in it. But if you ask me as a 10th standard boy or a 9th standard boy, sir, shall I do it by this method? Then I will say, beta, if you are in class 10th, better don't go for that method. Go directly for direct method. What is the direct method? I will tell you how you have to do by direct method. कैसे करना है? 9 और 15. 9 और 15 को सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड करती है वो आपको ढूंढना है. तो 9 और 15 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या है 3. फिर यहां पर h स्क्वायर है, यहां पर h क्यूब है, तो यहां पर h 2 बार है, यहां पर h 3 बार है, तो हमें 2 बार वाला h दोनों जगह पर है, यानी h स्क्वायर इज कॉमन बोथ साइड. तो ब्रैकेट में जो बचता है वो आपको लिखना है. तो 3 अगर आपने कॉमन ले लिया बच्चों तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 होगा. h स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो बचेगा क्या? g बचेगा. माइनस 3 कॉमन ले लिया आपने, h क्यूब में से 2 h स्क्वायर गए हैं तो बचा कितना? 1 h बचा है, तो कितना होगा? 5 इंटू h. तो आप देख लीजिए कि मेरा जो जवाब यहाँ पर है 3h स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3g माइनस 5h मुझे मिल गया. तो जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो बच्चों क्या आपको लगता है ये करना संभव है? क्योंकि ये तो एक सिंपल स्टेप हो जाएगा, मगर 6th 7th 8th में ये सारी बातें काफ़ी कॉमन हैं, आम बातें हैं, मगर 10th स्टैंडर्ड में तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू डू इट. और ख़ास करके अगर मान लीजिए इफ इट ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी बिग, 36 का क्या बार बार ऐसे लिखते रहोगे? 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आप फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज मैंने क्या किया है? केवल 2 पदों का फैक्टराइजेशन लिया. देखते हैं कल 3 पदों का लेंगे और बाद में HCF और LCM उसका कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताएंगे. अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और आप सब मेरे साथ अभी करना शुरू कर दोगे. चलो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? हाँ, हाथ ऊपर करो. तैयार है? यस. चलो अब मेरे साथ साथ आप जवाब दोगे और आपका जवाब मैं लिखता चला जाऊंगा. मुझे सुनाई दे रहा है, भले मैं अकेला बोल रहा हूं मगर मुझे सुनाई दे रहा है. क्या सुनाई दे रहा है देखते हैं. अब मैं अपने बच्चों से पहला सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12 एंड 28? 12 और 28 को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या कौन सी है? क्या कहा आपने? 4. सही है, सही कहा आपने.
तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, यस स्क्वायर है और यस है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? यहां पर एक एस है, यहां पर दो एस है। हियर देयर आर 2 एस, हियर देयर आर 1 एस। कितने एस कॉमन है? क्या कहा? एक। सही है। टी यहां पर है, टी यहां पर है क्या? नहीं, छोड़ दो फिर उसको। तो अब मुझे जवाब आप दोगे, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। देखिए 4 मैंने कॉमन ले लिया, यस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? 4 3 12 बचेगा। यस मैंने कॉमन ले लिया है 2 में से एक, तो कितने एस बचेंगे? 1 एस बचेगा। सर टी तो है यहां पर, ऐसे ही रख दो उसको। फिर 4 के टेबल में 28 कितनी बार आएगा? 7 जा आएगा। सर ये सब तो लिखना भूल गए। मैं भूला नहीं, मैंने कॉमन लिया है। भूला नहीं हो, कॉमन लिया है। अब चलो चेक करके देखते हैं हम। प्लस इंटू प्लस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। देखिए मेरे पास सवाल भी है, मेरे पास जवाब भी मेरा है। जवाब को अलग से ढूंढते हुआ मैं नोटबुक में, किताबों में मैं नहीं जाऊंगा, फिर से पीछे आ जाऊंगा, तो मेरे को सवाल जवाब मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑफ प्लस प्लस होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, यस इंटू यस यस स्क्वायर होगा, टी एज इट इज, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 4 इंटू 7 28 होगा, यस एज इट इज। तो सवाल भी मेरे पास है, जवाब भी मेरे पास है, तो फिर मैं ढूंढता हुआ क्यों जाऊं बाहर। तो उम्मीद है कि 3 प्रॉब्लम सिस्टमैटिक और डायरेक्ट मेथड से किया, बाकी के 3 प्रॉब्लम हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे और आपको सवाल पूछते हुए करेंगे। कोई सोएगा नहीं वीडियो देखते देखते, कोई सो रहा है तो मैं आपके घर आ रहा हूं आपको पूछने के लिए। सोना मत, सोना मना है। चलो ओके, आर यू रेडी? फाइन, रेडी है ना? चलो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये मेथड छोड़ दो, अब इस मेथड को छोड़ दीजिए, इस मेथड की तरफ हम आएंगे। चलो बच्चों, पहला प्रश्न मेरा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 36 और 48 को डिवाइड करती है? नेम द बिगेस्ट नंबर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी, मल्टीपल नहीं, जीसीडी। नेम द हाईएस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स 36 एंड 48। 36 और 48 को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या कौन सी है? क्या कहा? 12। सही है, यस। 12 कहा ना आपने? नहीं, डाउट है? 12 ही है, 12 सही है। अगर आप 12 के अलावा कुछ और सोच रहे हैं तो आपने गलत सोचा है बच्चों। तो लॉक कर दूं, 12 हो गया लॉक। तो 12 आपने कॉमन ले लिया। 12 इज द नंबर दैट डिवाइड्स 36 एंड 48। सो 12 अगर आपने ले लिया बच्चों, तो 12 3 जा 36 होगा बच्चों, और 12 4 जा 48 होगा। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 होगा। चलो नंबर्स के बारे में हमने सॉल्व कर लिया। नंबर्स का HCF है 12। अब p क्यूब और p रेज टू 4, p इज रिपीटेड 3 टाइम्स, p इज रिपीटेड 4 टाइम्स। तो 3 बार p है, 4 बार p है, तो 3 बार यहां पर है, 4 बार इधर है, तो ये 3 बार वाला हम कॉमन लेंगे। 3 बार वाला हम कॉमन लेंगे, तो यहां p बचेगा नहीं, मगर यहां पर एक p बचेगा, एक p बचेगा। उसके बाद q रेज टू 4 है, q रेज टू 2 है। q 4 बार है, q 2 बार है, कितना लेना है? q रेज टू 4 कहा, गलत जवाब। नहीं सर, q स्क्वायर कहा, हाँ सही है। तो अगर तुमने q स्क्वायर कहा है तो सही है। q रेज टू 4 जिन्होंने कहा गलत है। तो q रेज टू 4 है, तो यहां पर एक बचेगा, q रेज टू 2 माइनस एज इट इज। सर मुझे डाउट है मेरा जवाब सही है नहीं। सिंपल है बच्चों, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 12 इंटू 3 36 होगा, p क्यूब
ये ऐसे ही होगा, और पी क्यूब इंटू पी क्यूब हो गया, फिर क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू रेज टू 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सही है मेरा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 12 इंटू 4 48, पी क्यूब इंटू पी कितना होगा बच्चों, पी रेज टू 4 होगा, और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो उम्मीद है आप नींद से सोना मत, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। और मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, वीडियोस तो बहुत देखते हैं, होमवर्क बहुत कम करते हो यार, वैसा मत करो। वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद तुम जो सवाल मैं करता हूँ उसको सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर लिखना। सर आप चेक कैसे करोगे, आप भेज के तो देखो, मैं चेक करूँगा। आप जितने भी बच्चे आंसर्स भेजेंगे सभी का आंसर्स मैं चेक करूँगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ये मेरा वादा है। मगर सॉल्व करने का वादा तुम्हारा होना चाहिए। यू शुड प्रॉमिस मी टू सॉल्व, आई प्रॉमिस यू टू करेक्ट। सर कैसे भेजे सर, पिक्चर अपलोड हो सकता है तो अच्छी बात है, पिक्चर अपलोड अगर नहीं होता है तो पेपर में सॉल्व कीजिए और आंसर्स आप लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पे फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर, जो भी आंसर आए वो लिख दीजिए। डेफिनेटली मैं आपका आंसर चेक करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए इस मेथड से हर बार करना संभव नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहां आप देखो 60 है, 35 है, कौन सी संख्या है बड़े से बड़ी संख्या जो 60 को भी डिवाइड करता है और 35 को भी डिवाइड करता है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया है बच्चों, आपको मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है। अब आप ये नहीं कह सकते सर हमको पता नहीं है। अगर आपका जवाब हमको पता नहीं है, इफ यू से आई डोंट नो, देन आई विल से प्लीज गो बैक टू दोज वीडियोस, प्लीज अगेन गो बैक एंड कंसोलिडेट योर बेसिक्स। अपना बेसिक्स को अच्छा कीजिए फिर से एक बार। बेसिक अगर चला गया बच्चों तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ हर चीज के लिए बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स इज मस्ट। तो 60 और 35 को डिवाइड करने वाला कौन सा बड़ा नंबर है, किसी का जवाब आ रहा है मुझे? हाँ सही कहा तुमने, क्या है सर? 5 है सर, वेरी गुड। जिस बच्चे ने भी 5 जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 60 एज वेल एज 35। तो ऐसा अगर मैं ले लूं तो ये 5 12 जा 60 होगा बच्चों, और 5 7 जा 35 होगा। फिर उसके बाद यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है। अब आप ही से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, x स्क्वायर लेना है या x लेना है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, x स्क्वायर लेना है या x लेना है? x लेना है सर, सही है, x ही लेना है। डाउट है आपके दिमाग में अभी भी? x ही लेना है बच्चों। तो x अगर मैं ले लूं तो यहां पर 2x है बच्चों, यहां पर 1x है, उसमें से 1x को मैंने ले लिया तो बचेगा 1x, यहां का x तो चला गया बच्चों। y क्यूब है, y स्क्वायर है। चलो कमॉन बच्चों, अब आप नहीं कहोगे कि हमको लेना कौन सा पता नहीं है। लिया आपने, नोटबुक में लिखा, y क्यूब लिखा है, y स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर लिखा, सही है। तो y स्क्वायर आप लोगे तो यहां 3y है, उसमें से 1y मैंने यहां रखा, 2 मैंने ले लिया इसमें, ये तो 1 चला गया, तो ये मेरा आंसर होगा। व्हाट इज माई आंसर? 12xy। सर हमको डाउट है सर ये सही है या गलत है। चिंता मत करो सर, प्लस ऑफ प्लस प्लस है, 12 इंटू 5 60 है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, y स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब है, प्लस ऑफ माइनस माइनस है, 5 इंटू 7 35 है, x एज इट इज है, y स्क्वायर एज इट इज है। तो बच्चों ट्राई टू लर्न मैथ्स योरसेल्फ। और आपको आज जाते जाते एक छोटा सा टेक्निक मैं दे दूं। आप एक काम करो कि ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो अपने नोटबुक के अंदर। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स आप लिखो। लिखने के बाद में हर एक बच्चे को मैं बताऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है,
और जैसे ही मैंने आपका जवाब सॉल्व किया, ये सॉल्व करूँगा, आप छोटा सा टिक मारो, करेक्शन करके साइन नहीं करना अपनी टीचर की, छोटा सा टिक मारना। टिक क्यों मारना? क्योंकि यस आई गॉट द राइट आंसर। दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अरे यार मैं भी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है बच्चों, जो 10th के बच्चे या 9th के बच्चे, द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर बेसिक्स कैन डू वेल बाय डूइंग दिस, एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, आप इसको सीख लीजिए बच्चों। इसको सीखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, कीप लर्निंग वॉट एवर आई टीच। आप ये मत ढूंढने की कोशिश करो कि कौन से टॉपिक में ये है, ये काम की बातें हैं, सीखिए आप। तो उम्मीद है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।